Okay, good morning, student. Now, till now, whatever the concept we are seeing, we are going to see certain numericals based on that one. So, one numerical is written on the series and parallel combination of the register. So, your example is your calculate the equivalent resistance between the point A and B. We have two diagrams. This is the simple one. Then after we will go for the difficulty level. See here. To identify which resistance are in series and which resistance are in parallel, we have to see. Already I have your 2 points when series is there, when current is same, and when current is different, then parallel is there. So series मतलब क्या? यहाँ से जाने वाला करंट और यहाँ से जाने वाला करंट. अब देखो दोनों में से सेम करंट जाएगा और यहाँ से दूसरा कुछ करंट जाएगा. ये दोनों कैसे हैं? These two are in series, and the series combination of these two is in parallel with the series. So first of all, let me say this resistance is R1. So R1 is equal to what? 6 plus 6, that is 12 ohm. Now the same circuit will be drawn like this. इन दोनों का मिला के क्या होगा? एक 12 ohm का resistance होगा, that is suppose 12 ohm, and here is 6 ohm. Now this point is A and this point is suppose B. अब देखो यहाँ पे 12 and 6 are in parallel. So we know the parallel formula. So 1 upon R equivalent is 1 upon 12 plus 1 by 6. एक resistance parallel में है दोनों. तो एक 1 by R1 plus 1 upon R2. Likewise, तो एक हमारा 12, 1 by 12 and 1 by 6. तो इसका LCM होगा 12. That is 1 plus 2. So it becomes 6 2s are 12. 2 is there. 2 plus 3 by 12. That is 1 upon RP. So by this way we have RP is equal to 12 by 3. So it becomes 4 ohm. So what is the equivalent resistance between point A and B? For this circuit, 4 ohm. Clear? So likewise, let me see here. These two are in parallel. These two are also in parallel, but here is the single line guiding. So same current is passing through these two, combination of these two, and same current is passing through this combination of these two. ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पहले parallel में, बाद में ये दोनों parallel में, and then after the whole of these two is in the series. तो ये हो जाएगा parallel, ये हो जाएगा parallel, ये हो जाएगा series. तो हम निकाल लेते हैं पहले parallel पीस का. दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, बिकॉज ए भी 6 है, ए भी 6 है, ए भी 6 है, ए भी 6 है. तो मैं एक निकाल लेता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे लिख दूंगा. तो पहला कॉम्बिनेशन के लिए 1 upon RP is equal to 1 by 6 plus 1 by 6. तो ये हो जाएगा 1 upon RP is equal to LCM 6, that is 2 by 6. So that's the RP is equal to what? 6 by 2. So it becomes 3 ohm. Similarly, for the second one is again RP is equal to 3 ohm. But these two are in series. So A वाला एक और A वाला एक दोनों कैसे आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे. तो ये और ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? बट ये दोनों एक साथ और सीरीज में आ रहे हैं. तो टोटल RS कितना हो जाएगा? RP1, इसको बोल देते हैं तो RP1 प्लस RP2. तो हो जाएगा आपका 3 plus 3, that is 6 ohm. So this is nothing but the equivalent resistance between point A and B. ठीक है? तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. ऐसे में डायग्राम ले लेता हूँ, 2-3 डायग्राम आपको फिर क्लियर हो जाएगी. क्लियर? So let me take another example. I will draw a circuit diagram, and accordingly I am going to find out the equivalent resistance. So here this is the triangle. One resistor, here is second resistor, here is the third resistor. Again, here is the point A and here is the point B. So these are the two points. So here we can have 1 and 2 ohm, and this is suppose 1.5 ohm. अब पैरेलल और सीरीज कैसे बचाएंगे? हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किसी ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. इधर से जाएंगे या फिर इधर से? दो वे है यहाँ से जाने के लिए. If you go like this, then we are finding there is no any branch in between 1 and 2. So that's why we can say these two are in सीरीज. तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे. बट ये सेम वाला इसमें से नहीं जा रहा है, यहाँ से कुछ अलग जा रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? अलग ब्रांच हो जाएगी. तो इसके साथ ही पैरेलल में आ जाएगी. तो मैं इसका सिंपलीफाई सर्किट अगर निकाल दो बॉक्स वाले, इसमें तो हमें समझ में आ जाता है. हमेशा अगर आड़ा टेढ़ा सर्किट दिया है तो हमेशा बॉक्स में निकालने की कोशिश कीजिए. ये दोनों कैसे आ गए? ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, और नीचे कितना ये वाला 1.5 वाला. देख लीजिए. और यहाँ पे कौन सा आपका A पॉइंट और यहाँ पे कौन सा आपका B पॉइंट. एक इक्विवेलेंट सर्किट निकाला मैंने, इसका सिंपलीफाइड सर्किट. अब देखो क्या होगा. ये 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, और ये वाला कितना है 1.5 ओम. अब
अब देखो इस समझने में आसानी हो जाती है। कैसे करना है, एक कितनी ब्रांचेस है, दो है, एक दो, ये एक ब्रांच हो गई और एक दूसरी ब्रांच हो गई। फिर इस ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक और ये दूसरा आ रहा है। फिर तार पे मीटर है डी पे और ये दूसरी ब्रांच में तार पे मीटर है डी पे। तो ऐसे हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं। अब इसमें समझ में आ जाएगा कौन सीरीज कौन पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो मैं इसका पहले इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। तो RS1 निकाल लेता हूं, तो इसको बोल देता हूं मैं R1। तो R1 निकल आएगा आपको कितना, 1 + 2 दैट इज 3 ओम, और ये 1.5 है। तो RP कितना आएगा, 1/RP, ये और ये पैरेलल में 1/3, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1 + 2 = 3 ओम। ये हो जाएगा 3, और ये वाला है हमारा 1/1.5। क्लियर है, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन एंड ये वाला। अब देखो इसको करना है, तो 3 इसका एलसीएम होगा, 1 + 1.5 × 2 is 3, that's 1/RP। RP कितना हो जाएगा, 3/3 that is equal to 1। तो आपका कितना ओम आएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। अगेन आई विल टेक वन डायग्राम, इट विल बी डिफिकल्ट हो देयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कि इसका पैरेलल और कौन सीरीज में इतना समझ में आना चाहिए। एक बार वो समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के प्रॉब्लम मोस्टली पूछे जाते हैं बोर्ड में, और उसमें करंट वगैरह, तो पहले कॉम्बिनेशन समझ में आया तो हम आगे भी करंट वगैरह जो भी है वो चीजें समझ पाते हैं। अगर हमें कॉम्बिनेशन ही निकालते नहीं आया तो हम आगे क्या पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि हमें पहले कॉम्बिनेशन आना चाहिए, तभी जाके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, बाकी इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल जो भी आगे वाले स्टेप्स है हम कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम, here is 2 ohm, here is also 2 ohm. This point is A and this point is B. अब देखो इसका भी हमें सिंपलीफाइड सर्किट कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअली है ये सिंपलीफाइड, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितनी ब्रांचेस है, इनके पास 1 2 3। अब देखो इस ब्रांच से जाने की कोशिश करेंगे, दोनों कैसे आ रहे हैं, एक ही ब्रांच में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। ऐसे अगर इस लाइन से जाते हैं तो यहाँ पे भी ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो इसका एक इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट, इस ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट निकलेगा। अब ये तीनों कैसे आ रहे हैं, देखो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच, ये तीनों कैसे आ रहे हैं, पैरेलल में। तो हम निकाल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं पहले। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2। अब देखो यहाँ पे ये मैं निकाल लेता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये वाला, और ये दूसरा एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हो जाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन, एडिशन सीरीज में है, तो R1 पकड़ लेते हैं इसको, दैट इज R1 इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 4। क्लियर है, ये हमारा R2 पकड़ लेता हूँ कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब ये 1 2 और ये 3 ऐसे आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस A प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो कितना आ जाएगा 1/ कॉम्बिनेशन कितना है 4 प्लस 1/5 प्लस A वाला है 1/1। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 5 प्लस यहाँ पे कितना होगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 20। एलसीएम हमने निकाला था 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ऊपर करो, यहाँ पे 20 से किया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इतना कितना है 25 प्लस 20 29 डिवाइड बाय 20 दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/RP। RP कितना निकल के आएगा, RP इज इक्वल टू 20/29 ओम। दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस between the point A and B in this particular combination. Got it? So इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कैसे सीरीज और पैरेलल सॉल्व करने हैं। अब मैं थोड़ा सा एक अलग से एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ में आ रहा है? So here next one we can go for the other example, that is example what is there, 3 resistors of value 4 ohm, 3 resistors
ओम, 6 ओम है, 7 ओम, 4, 6 and 7 ohm are in series connected to potential 34 volt. Find the potential drop across each resistor. Find the potential drop across each resistor. हमें क्या निकालना है? Find the potential drop across each resistor. अब मैं इसका सर्किट निकाल लेता हूँ। देखिए पहले क्या है, सर्किट निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो तीनों सीरीज में कनेक्ट किया, तो मैं तीनों सीरीज में कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक है 4 ओम का, एक है 6 ओम का और एक है 7 ओम। ये हो गए तीनों सीरीज में 4 ओम, 6 ओम एंड 7 ओम। अब ये तीनों कैसे हैं? कनेक्ट किए बैटरी को, ठीक है, इसको कनेक्ट किया बैटरी को जिसका पोटेंशियल कितना है 34 वोल्ट है। अब हमें क्या करना है, ये तीनों के अक्रॉस पहले पोटेंशियल कितना है वो निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं मान लेता हूँ कि इसे अक्रॉस एक पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू हम V1 पकड़ लेते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है इसको पकड़ लेते हैं V2 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पकड़ लेते हैं V3। और हमें पता है तीनों का सम कितने बराबर होगा? 34 के बराबर होगा। तो ये हमें पोटेंशियल निकालने के लिए इसको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, इधर भी ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, इधर भी ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे सबसे जेन्युइन बात क्या है जो हमें समझ में आनी चाहिए, देखो ये तीनों सीरीज में, मतलब इसमें से जाने वाला करंट क्या होगा? सेम होगा। रेजिस्टेंस भी पता है, हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? V = IR। अगर ये ओम्स लॉ है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है और क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? सिर्फ रेजिस्टेंस पता है, इंडिविजुअल R पता है। अब हम देखो तीनों में से जाने वाला करंट से हमें तो हम I आसानी से निकाल सकते हैं पूरे सर्किट को ओम्स लॉ लगा के। और V क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। तो सेपरेटली अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं इसको तो हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे होगा, मैं पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। आप बता सकते हो कि डायरेक्टली, क्योंकि एग्जांपल पहले हमने लिए थे तीनों सीरीज में, तीनों का क्या होगा? एडिशन। तो कितना होगा? 4 + 6 + 7 कितना हो जाएगा? 70, करेक्ट। सो 70 ओम। तो अब देखो ये पूरा का पूरा हो गया रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हुआ? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? ये टोटल पोटेंशियल कितना है? ये तो टोटल करंट पता चल जाएगा। तो टोटल करंट कैसा होगा? V = I × RS। I कितना निकल के आएगा आपका? V/RS, ठीक है, यहां से पता चल गया। ये I हमारा निकल गया V = 34/17, दैट इज 2 एम्पियर। तो करंट कितना मिला इसमें से जाने वाला? करंट I = 2 एम्पियर मिल गया। अब करंट मिल गया तो आसानी हो गई, इसमें से जाने वाला करंट भी कितना होगा? 2 एम्पियर। इसमें से जाने वाला भी कितना होगा? 2 एम्पियर। इसमें से जाने वाला भी कितना होगा? 2 एम्पियर। तो सब में से 2 एम्पियर जा रहा है, सबका रेजिस्टेंस पता है तो सबका पोटेंशियल निकाल सकते हैं अलग अलग से। तो मैं पहले किसका निकालूंगा? 4 ओम का निकालूंगा। अब देखो 4 ओम का कितना है? V1। तो V1 = ओम्स लॉ लगाना है, इसमें से जाने वाला करंट कितना है? 4 से 2 एम्पियर, हियर इज 2। तो मैं इधर लिख लेता हूं I इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1 पकड़ लेता हूं मैं। I कितना है हमारा? 2 इनटू R1 कितना है? 4। तो V1 कितना हुआ आपका? 8 वोल्ट। तो V1 हो जाएगा आपका 8 वोल्ट। मतलब आपको 4 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा पता चल गया। अब वैसे हम दूसरे के लिए निकालेंगे। V2 कितना हो जाएगा? 6 और करंट कितना है? 2। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि आपको पता है। तो V2 कितना हो जाएगा? तब जाने वाला करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। अब V3 कैसे निकालेंगे? V3 = करंट कितना जा रहा है इसमें से भी? 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है? 7, ये हो जाएगा 14 वोल्ट। सो दैट इज V3। ये हो जाएगा। अब देखो तीनों का सम 30 वोल्ट के बराबर आता है कि नहीं आता है, देखो करके हम टैली करके देख लेते हैं। 14 + 12 + 8 कितना हो जाएगा? 4 and 30। तो ये देखो आपका न्यूमेरिकल टैली हो गया। देखो तीनों का मिला के कितना हुआ? 14 + 12 + 8
34 के बराबर है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिक हर एक एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से लगता है। एक बार आपको स्टेप्स कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप आसानी से लॉजिक लगा के, यहाँ पे खाली एक सिंगल सीरीज सर्किट दिया है इसलिए आसानी होगी। कभी कभी हो सकता है कि सीरीज भी आ जाए, उसके साथ पैरेलल भी आ जाए, तो उस टाइम पे आपको कैसे लॉजिक लगाना है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मैं एक मेरे हिसाब से दे देता हूँ एग्जांपल, आपको पोटेंशियल और करंट दोनों निकालना है। ठीक है, मैं सिर्फ सर्किट ड्रॉ करूंगा और क्या निकालना है वो लिखूंगा। मेरे मन से निकाल दो एक डायग्राम। ठीक है, एक डायग्राम है, क्या निकालना है? फाइंड करंट थ्रू 4 ohm, 6 ohm and 2 ohm. Also find potential across all 4 ohm, 6 ohm and 2 ohm. अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल मैंने बढ़ा दी, जो मैंने लास्ट वाला एग्जांपल लिया था उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना है इसके ऊपर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको सिर्फ पोटेंशियल दिया है, हमारे लास्ट एग्जांपल में भी पोटेंशियल दिया था, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल दिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस और पोटेंशियल ही दिया हुआ। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या रहेगी? टोटल करंट निकालने की। जब हम टोटल निकालेंगे तो अपने आप सब चीजें आसानी से पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हम पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, अब यहाँ these are in parallel और सॉरी सीरीज, और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं। तो R1 पकड़ लेते, इसको पकड़ लेते R1। R1 कितना होगा? 4 + 6 दैट इज 10 ओम, और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, तो 1/RP जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा किसका? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ये रहेगा, तो ये होगा आपका Rp = 1/10 + 1/2। क्लियर है? देखो ये दोनों सीरीज में, तो दोनों का एडिशन करते हैं, हमने 10 मिल जाए, लेकिन ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। बाकी तो कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले सिर्फ हम इतना ही सॉल्व करेंगे। 6 + 4 = 10 एंड दिस इज 2, तो दोनों पैरेलल है। इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 1 + 5। देख लीजिए 10, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 आ जाएगा, 5 + 1 = 6, 6/10 हो गया आपका 1/RP। तो RP कितना हो जाएगा? 10/6 मतलब 5/3, तो दैट इज Rp। तो हमारा रेजिस्टेंस निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस निकल गया तो हमें करंट निकालना है। अगर करंट निकालना है, देखो कैसे करेंगे। टोटल करंट इज इक्वल टू, मैंने पहले लास्ट टाइम में V = IR फॉर्मूला बताया था, तो R मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे Rp को हम बोलेंगे, R इक्विवेलेंट भी बोलेंगे, = Rp = 5/3 ओम। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखो R इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 5/3, क्योंकि हमने सब सॉल्व करके देख लिया। अब देखो यहाँ पे कैसे किया है, ये दोनों का सीरीज है, सीरीज निकाल लेंगे। ये दोनों कैसे? पैरेलल है, 1/10 + 1/2 = 1/RP। इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? 6/10। तो RP कितना हो जाएगा? 10/6, 10/6 मतलब 5/3, कितना मिल गया। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट, टोटल पोटेंशियल पता है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है, तो टोटल करंट क्या होगा? V/R इक्विवेलेंट। V कितना है हमारा? 8, और R इक्विवेलेंट कितना है? 5/3 into 3, तो कितना हो जाएगा? 24/5 करंट एम्पियर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते क्या हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 24/5 मतलब बता सकते हो? 5 4 20, बचा कितना? 4, तो 4.8 एम्पियर, दैट इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो करंट इन दोनों में से अलग अलग जाएगा, लेकिन सर्किट से जाने वाला जो टोटल करंट है R, ये कितना जा रहा है? 4.8 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें से जाने वाला करंट और इसमें से जाने वाला करंट अलग से निकालना है।
बट मुझे बताओ ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये कैसे पैरेलल में, और मैंने उस टाइम में बताया था कि अगर कोई पैरेलल में होता है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट के बीच में और ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो ये दो पॉइंट की क्या है, सेम ही है। देखो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट। इन दोनों के बीच का भी कितना होगा, 8 वोल्ट, और इन दोनों के बीच का भी कितना होगा, 8 वोल्ट। तो मैं बोल सकता हूं द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज 8 वोल्ट। आसानी से पता चलेगा। तो 2 वोल्ट का तो काम खलास, ये हो गया। अब बचा हमारा 4 और 6। अब देखो 4 और 6 पता होने के लिए इसमें से जाने वाला करंट में निकालना है। अब देखो कुछ करंट इसमें से जाएगा, मैं मान लेता हूं इसमें से जाने वाला करंट I1 है और इसमें से जाने वाला करंट कितना है, I2 है। टोटल करंट कितना है, I। तो I क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 हो जाएगा। देखो ये I1 और ये I2। अब हम पहले आसानी वाला निकाल लेते हैं, I1 निकाल लेते हैं। I1 निकालने के बाद ये पता है, ये पता चल गया तो ये आराम से पता चल जाएगा इस इक्वेशन से, क्योंकि टोटल करंट कितना है हमारा, I। ये I कितने ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, 2 ब्रांच में। तो ये टोटल करंट किसका सम होगा, I1 और I2 का। तो ये इक्वेशन तैयार हो गया हमारा, I I1 प्लस I2। ये थोड़ी डिफिकल्टी के वजह सब पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम I1 निकाल लेते हैं। I1 किसमें से जा रहा है, 2 ओम से, मतलब इधर से कितना जा रहा है I1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, मैंने अभी बताया था आपको। देखो कितना है, 0.2 कितना है, 8 वोल्ट। तो 2 के अक्रॉस भी कितना होगा, 8 होगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 ओम के अक्रॉस, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, देखो 8 वोल्ट। अब निकालना है हमें करंट, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू करंट थ्रू 2 ओम, दैट इज I1 इनटू रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो I1 कितना निकल के आएगा, पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम डिवाइड बाय 2, तो कितना है ये 8/2 तो हो जाएगा। देखो 2 ओम के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल, 8, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, इस ब्रांच में 2, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पीयर करंट। कितना एम्पीयर निकल रहा है, 4 एम्पीयर करंट इसमें से जा रहा है। अब बचा कितना है, बचा हुआ इसमें से जा रहा होगा, तो बचा कितना है, I2 किसमें से जा रहा है, देखो I2 इज इक्वल टू इस इक्वेशन से कितना आएगा, I माइनस I1। I कितना है 4.8 माइनस 4 हो जाएगा आपका 0.8 एम्पीयर। मतलब इधर से जाने वाला करंट कितना हुआ 0.8, इधर से जाने वाला करंट कितना होगा 4 एम्पीयर। अब यहां से जाने वाला करंट मिल गया तो आराम से पोटेंशियल भी मिल जाएगा। तो हमें निकालना है क्या अभी, पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम। तो मैं निकाल लेता हूं पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम इज हाउ मच, इसके अक्रॉस करंट मिल गया, करंट कितना है 0.8, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना होगा 3.2 वोल्ट। ठीक है, अब वही करंट किसमें जा रहा है 6 में से, तो पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम कितना हो जाएगा 0.8, करंट वही है इनटू 6, तो कितना हो जाएगा 4.8 वोल्ट। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल है उतना ये दोनों के अक्रॉस है। अब देखो दोनों का सम कितना ही आता है क्या, 3.2 और 4.8 के बराबर आता है क्या, देखो तो कितना आ जाएगा, देखो 4.8 एंड 3.2 कितना होगा 0.78 वोल्ट आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या है, मतलब क्या हुआ, ये दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो इतना ही था, इतना कितना है 8 वोल्ट। ये दोनों के अक्रॉस भी कितना आना चाहिए, वो 8 वोल्ट। तो एक के अक्रॉस कितना हुआ 3.2 वोल्ट, और 6 ओम के अक्रॉस कितना है 4.8 वोल्ट, और 2 के अक्रॉस कितना हुआ, ये दो पॉइंट के बीच में था उतना ही, तो कितना आया 2 के अक्रॉस 8 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। क्लियर है, तो इसमें इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको पूछा जा सकता है। Now next problem we'll see on resistance and resistivity. कुछ मैंने लिए थे उस टाइम पे, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। I will write here the example. Calculate the resistance of 50 meter length. Calculate the resistance of 50 meter length of cross section
क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 millimeter square and resistivity 5 into 10 raised to the power minus 6 ohm. देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला पता है, व्हाट इज दैट? पहले तो सबसे पहले गिवन लिख लेना है आपको। ओके, गिवन क्या दिया है? पहली बार लेंथ दी है, कितनी है? 50 मीटर। क्लियर है? दूसरा क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट दिया हुआ 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर दिया है हमारा, जैसा यूनिट मिलीमीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो मिली का मतलब कितना होता है? 0.01। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, मिली मतलब 10 raised to the power minus 3। इसका क्या है? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 0.01 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया। देखो कैसे कन्वर्ट किया मैं बता देता हूँ। मिली का स्क्वायर है तो मिली मतलब होता है 10 raised to power minus 3। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 raised to power minus 6। तो ये हो जाएगा 10 raised to power minus 6। अब ये हो जाएगा 10 raised to power minus 6 मीटर स्क्वायर। लेंथ पता चल रहा है, रेजिस्टिविटी भी दी हुई है, कितनी है? कितनी दी हुई है? 5 into 10 raised to the power minus 6 ओम मीटर। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? R is equal to rho into L by A। करेक्ट है? अब पुट करो, क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज R, रो कितना दिया है? 5 into 10 raised to the power minus 6 into लेंथ कितनी दी है? 50 मीटर। अब आप बोलोगे इसका क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि इस मीटर में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एरिया मिलीमीटर में था, हमारा ऐसे यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए मिलीमीटर को मीटर में किया। अपॉन एरिया कितना है आपका? देखो 0.01 into 10 raised to the power minus 6। अब मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये +6 - 6 क्या होगा? कैंसिल हो गया, सॉरी माइनस 6 कैंसिल हो गया। या फिर हम इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो 10 - 6 क्या हो जाएगा? +6 +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कितना आएगा? 250 डिवाइड बाय 0.01। इसके दो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करो, यहाँ पे 2 छक्का दो, कितना हो जाएगा? 1 2 डिवाइड बाय 1 कितना मिला आपको? 25000। कितना हो जाएगा? 25 किलो ओम। अब किलो मतलब कितना होता है? देखो 3 0, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 25,000 मतलब 25 to 10 raised to power 3। 10 raised to power 3 मतलब 1000, 1000 into 25 25,000। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। और 10 raised to power 3 को क्या कहा जाता है? किलो। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इज 25 किलो ओम। इस तरह से आप इस तरह का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और रिलेटेड टू स्ट्रेचिंग वाला और कटिंग वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक बार और कटिंग वाला मैं ले लेता हूँ, एक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम। Now let me go over the other problem. A wire of length L and the resistance 20 ohm are cut into 3 equal parts and then each part connected in parallel. Then find equivalent resistance। ये क्वेश्चन है, देखो। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। पहले बोला क्या है देख लो। एक लेंथ दी है और रेजिस्टेंस का कितना है? 20 ओम है। इसके कितने पार्ट किए? 3 की जगह 4 ले, 4 इक्वल पार्ट किया। कितना किया है? 20 ओम के 4 इक्वल पार्ट। तो मैं पकड़ लेता हूँ, ये मेरे पास एक पूरा का पूरा वायर था। कितनी लेंथ थी? L थी। और इसका ओम कितना था? 20 ओम का। मुझे बताया आप एरिया आप डिवाइड कर रहे हैं लेंथ कर रहे हैं। एक लेंथ दूसरी लेंथ की 4 पार्ट की। एक पार्ट कितने का हो जाएगा?
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे प्रॉब्लम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लॉजिक लगा के आप कर सकते हो। ये लेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, लेंथ की कितने पार्ट की है 1/4, ये पार्ट कितना हुआ 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, चार ऐड कर दो तो L मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा R1 कितना होगा 1/4, बराबर है ना। तो R1 इज इक्वल टू L/4, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है रेजिस्टेंस को, हम बोल सकते हैं इसको भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा R/4, तो हो जाएगा 20/4, कितना मिल जाएगा आपको। एरिया से में ध्यान में रखना, मैं लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बस स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देर लगेगी बट कर देते हैं। पूरे का कितना है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, तो रो इंटू L/A का वैल्यू कितना है 20 ओम, ये दिया हुआ है कि लेंथ दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, रो कितना है, तो ये इसकी वैल्यू देगी 20 बिकॉज़ टोटल। अब मैंने लेंथ कितने कट कर दिए 4, तो न्यू लेंथ एक वायर की कितनी होगी L डैश इज L/4 हो जाएगी, बराबर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तो R डैश क्या होगा रो इंटू L डैश बाय A, एरिया तो हम चेंज नहीं कर रहे, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है, कितनी हो रही है L/4, हो जाएगी रो L/4A। अब मुझे बताओ 1/4A हो गया, रो L/A यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रो L/A कितना है आपका 20 ओम है, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4 दैट इज 5 ओम। मतलब क्या होगा इस एक पार्ट का, मतलब ये हुआ एक पार्ट L/4 पार्ट का 5, इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा 5, एक साथ जोड़ दिए तो पूरा वायर बनेगा, तो वायर का कितना हो जाएगा 20, देखो आराम से 20 आ, मतलब हम एक, अब ये चार टुकड़े कैसे जोड़ दिए पैरेलल में, तो मैं एक वायर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हुआ 5 ओम, दूसरे का कितना हुआ 5 ओम, तीसरे का कितना हुआ 5 ओम, चौथे का कितना हुआ 5 ओम, ऐसे चारों कैसे जोड़ दिए पैरेलल में जोड़ दिए, जैसे एग्जांपल में दिया है जोड़ दिया मैंने पैरेलल में इसको, तो दोनों चारों पैरेलल में, तो क्या निकलेगा R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, देखो चारों पैरेलल में, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 5, यहाँ पे होगा 4, 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4, दैट इज 1.25, कितना हो जाएगा ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, चारों पैरेलल में जोड़ने के बाद 1.25 हो जाएगा। बात समझ में, सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 आ जाएगा, क्यों, तो इसका 5 इसका 5 इसका 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, तो इस तरह से सीरीज में जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो पूरा वायर बन जाएगा। लेकिन हर एक पार्ट को जो L/4 पार्ट हमने कट किया था उसका 5 था, ऐसे का पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 1.25 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ठीक है, इतने प्रॉब्लम भी बहुत हो गए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में प्रॉब्लम डाल देना, मैं उसका सोल्यूशन एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा।